trial has shown that its candidate has an effective rate of 65.28% and 90% for preventing severe disease after 28 days of a single dose. Now let's go to the subject of the day. CORONIL, the science behind it. Before I invite our special guests, let's have our ritual of washing our hands. Suman K, S for Seedha, U for Ulta, M for Mutti, A for Angutha, N for Nakhun, and K for Kalai. And let me call my special guest, and that's Pujya Acharya Balkrishna ji, a well-known name in the country. Everywhere you can see his face. Everybody knows him in the country. He is the chairman and MD of Patanjali Ayurveda, which is supported by Swami Ramdev ji. He is also the vice chancellor at Patanjali University. He holds expert's knowledge of yoga, Ayurveda, Sanskrit language, Indian holy scriptures, and Ved. After dedicating his life for ancient healing and lifestyle tradition, he has become a great source of inspiration for traditional medicine practitioners. His efforts in yoga and Ayurveda scientific research has acquired him the much-deserved awards such as Ayurveda Expert, Manav Ratna, Bharat Gaurav, 10 Versatile and Dynamic Young Men of India, and UN SDG 10 Most Influential People in Healthcare Award. He has published more than 130 research articles in various journals, reserved about 41 patent rights, as well as authored and edited over 150 books. He has set up the Patanjali Bio Research Institute to propagate the idea of organic farming. I also have with me Dr. Anurag Varshne. He is currently the Vice President and Head of Patanjali Research Institute, seasoned drug discovery and developmental professional with 22 years of research and experience, PhD from National Center for Biological Sciences, Bengaluru, postdoc from Yale University School of Medicine, US, and MBA from New Delhi. In multilingual and multicultural environment, he has driven more than 50 diverse research teams with specialized risk mitigation and effective resolutions capabilities. So what we will do is, we will initially interact with Acharya ji, and then I will request Anurag to give a presentation on the scientific aspects of CORONIL. तो सबसे पहले मेरा सवाल बालकृष्ण जी को आए, बिकॉज यू आर एन आयुर्वेदिक एक्सपर्ट. सो पहले 10-15 मिनट में आयुर्वेद से ही इसको कोरिलेट करना चाहूंगा. जैसा मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसके हिसाब से कोरोना की जो बीमारी है वो बेसिकली पित्त का वेरिएशन है, यानी कि पित्त का प्रकोप है. और अगर हम देखें तो पांचों पित्त के अंदर में आलोचक पित्त आंखों में इन्वॉल्व करती है, भ्राजक पित्त स्किन में रैश आता है, रंजक पित्त ब्लड में और लिवर में इन्वॉल्व करती है, पाचक पित्त ये हमारी छोटे आंत स्टमक में इन्वॉल्व करती है, और साधक पित्त ये हार्ट में इन्वॉल्व करती है. इसमें पांचों वायु में से प्राण वायु इन्वॉल्व होती है. उदान वायु को ये स्पेयर करती है, व्यान वायु को ये इन्वॉल्व करती है, समान वायु को पेरिस्टाल्सिस करती है, और अपान वायु को ये स्पेयर करती है. और अगर हम लेके चले इसको कफ के अंदर में, तो ये रिलेटिवली पूरे कफ को स्पेयर करती है. जैसे बोधक कफ में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. इसके अंदर में हम अवलंबक को देखें तो प्लूरल एफ्यूजन, पेरिकार्डियल एफ्यूजन इसके अंदर में नहीं है. श्लेषक कफ को देखें तो इसके अंदर में ज्वाइंट का एफ्यूजन नहीं है इसके अंदर में. सो प्रैक्टिकली ये पांचों प्रकार के कफ को इग्नोर करती है. सो आयुर्वेद के अनुसार में ए एट ए लेवल ऑफ वात पित्त कफ, बी एट द लेवल ऑफ बिफोर वात पित्त कफ, बिकॉज अगर हम योगा वशिष्ठा पढ़ें तो वहां पे एक माइक्रोबियल कटकटी की स्टोरी आती है, करकटी की,
कि माइक्रोबियल वेदों में भी प्रेजेंट थे जो दिखते नहीं थे। ये दो कॉन्सेप्ट आप बताइए, फिर हम मॉडर्न मेडिसिन की तरफ चलेंगे। बालकृष्ण जी। जी डॉक्टर साहब, आज आपके सामने बैठ करके और पूरे देश के सामने आयुर्वेद की ज्ञान, नॉलेज और आयुर्वेद के साथ में जो पतंजलि के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है आधुनिक विज्ञान सम्मत बनाने के लिए, इस पर चर्चा करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता। सिद्धांत में हम इसको किसके साथ जोड़ें या जिन द्रव्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन द्रव्यों का आयुर्वेद के सिद्धांत से क्या उसका संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने उठाया। पर मैं इसमें थोड़ी सी दो बातें और जोड़ देना चाहता हूँ कि वेदों की बात आपने करी, बहुत बड़ी बात है कि वेदों की हमारी परंपरा बहुत प्राचीनी परंपरा है। सबसे प्राचीन हमारी जो संस्कृति और हमारी परंपरा है, वेदों के आधार पर ही आयुर्वेद का जो प्रादुर्भाव और प्रचार प्रारंभ हुआ। आयुर्वेद के अंदर मैं बात करता हूँ, हमारे सबसे प्रामाणिक और मान्य ग्रंथ हमारे चरक और सुश्रुत महर्षि द्वारा प्रतिपादित चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, उसके अंदर भी प्राचीन काल से जनपदों ध्वंस करके अनेक तरह की जो महामारियों का वर्णन वहाँ पर उल्लेख है। उसके अंदर जितने भी जो इन्फेक्शन वाली जो डिजीज़ हैं, जिसके अंदर हम संक्रमण कारक जो बीमारियों का काफ़ी वर्णन पाते हैं। तो संक्रमण के द्वारा दोष प्रकोपित होते हैं, दोषों का शमन किया जाता है, बढ़ जाते हैं हमारे जो वात पित्त कफ आदि जो डिसबैलेंस होते हैं, तो कारण कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं, जहाँ तक बात रही कि आपने कहा कि इस विषाणु से कोरोना वायरस के अंदर कौन सा दोष प्रकोपित होता है, पित्त बढ़ता है, पर दोष प्रकोपित के कारण को यदि हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा कफ, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा जो श्वसन तंत्र है, उस तंत्र पर ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। और ये देखा गया है कि उनको सर्दी जुकाम जो इस तरह से प्रारंभ हो करके औषधियों की हम बात कर रहे हैं या लक्षणों की बात कर रहे हैं, यदि मैं कहूँ कि वह कफ शामक औषधियाँ ज़्यादा काम करेंगी। और हमने जिन द्रव्यों का प्रयोग किया उससे पहले हमने आयुर्वेद के पूरे प्राचीन ग्रंथों को और शास्त्रों को भी बहुत गहनता के साथ अध्ययन किया। उसमें से मैं यदि बात करूं हो सकते हैं, और जो सिमुलेशन, जो साइंटिफिक जो सिमुलेशन वाली प्रक्रिया है, डॉकिंग वाली प्रक्रिया है कि किस प्रोटीन पर कौन सा ज़्यादा इफेक्ट डालता है, हमने सिमिलरली वो काम को भी शुरू कर दिया। जब हमने इस तरह के मापदंड के आधार पर उसको मापन, सबसे पहले जो प्रभाव को पाया वो हमने अश्वगंधा के ऊपर ज़्यादा प्रभाव को पाया कि अश्वगंधा बहुत ही काम करता है। यदि अश्वगंधा की मैं बात करूं कि जैसे आपने टू माना गया है, अश्वगंधा को वीर्य में इसको उष्ण माना गया है, और ये प्रभाव के रूप में देखते हैं तो विषय है, बल्य है, और श्रेय रस के कारण से कफ, और उष्ण होने के कारण से ये वात का शमन करता है। तो हमने देखा कि अश्वगंधा का बहुत ही अधिक प्रभाव है। और जब पहले श्रद्धेय स्वामी जी ने ये कहा कि कोरोना के लिए अश्वगंधा लाभकारी हो सकता है, कतिपय आयुर्वेद वाले लोगों ने भी कहा कि इसके अंदर तो ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन को खत्म करे, ये कैसे काम करता है। पर हमने ये देखा कि अश्वगंधा अत्यंत कारगर है। और अश्वगंधा का जो वर्णन है तो मदनपाल निघंटु, धन्वंतरी निघंटु, लघु निघंटु, भाप्रकाश, 17 से ज़्यादा ग्रंथों में इसका वर्णन है। इसी तरह से जो 17 से ज़्यादा ग्रंथों में इसका वर्णन है। इसी तरह से जो दूसरा प्रभाव हमने पाया गिलोय को भी, क्योंकि यदि आयुर्वेद की दृष्टि से देखें इसको हम मधुर, तिक्त, कषाय और कटु, मधुर, तिक्त, कषाय, कटु इसके अंदर रस हैं। ये लघु है, उष्ण है, मधुर है। इसके अंदर यदि प्रभाव को देखें तो यह हृदय है, बल्य है, रसायन है और अग्निदीपन करता है, यह आयुष्य को प्रदान करता है। यदि दोषों की दृष्टि से देखें तो गुडुचि को हमारे शास्त्रों के अंदर त्रिदोष नाशक माना गया है। त्रिदोष नाशक के साथ साथ में यह विशेष कर करके जो रोगों के शमन के लिए हम बात करें, ये सर्वजोर नाशक है, कृमिघ्न है, काश है, अतिसार नाशक है, दाह नाशक है, त्रिषा नाशक है, हिक्का है, कामला है, इन सब रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। और यदि हम इनको शास्त्रों के ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो जो गुडुचि है, गिलोय है, अमृता है, अमृतवल्ली है, इसका वर्णन 36 से ज़्यादा आयुर्वेद के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन ग्रंथों में इसका बहुत ही विशद, बहुत ही गंभीर और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ में वर्णन किया गया है। फिर तीसरा हमने जो प्रभाव देखा औषधीय रूप में, हमने तुलसी को पाया। तुलसी को यदि हम देखते हैं
तो जो उसका जो रस है कषाय कटु तिक्त माना गया है, और प्रभाव यदि देखें तो कृमिघ्न अग्निदीपन और हृदय रुचिकारक माना गया है। श्वास कास हिक्का वमन कृमि रोग दुर्गंध इस तरह के जितने भी जो भूत पहारिणी जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जितने भी हैं या अतिसार है, इनके ऊपर इसको बहुत लाभकारी माना गया है। और मैं बात करूं कि गिलोय कैसे काम करता है कोरोना के अंदर, वो कौन सा प्रभाव है, तो क्योंकि गिलोय के अंदर कटु तिक्त कषाय रस के कारण से वह कफ का शमन करता है, और मधुर होने के कारण से वह जो है वात और पित्त का शमन करता है। इसी तरह से अश्वगंधा कटु तिक्त और कषाय रस के कारण से, ये जो तुलसी है कटु तिक्त और कषाय रस के कारण से कफ का, और उष्ण होने के कारण से यह वात का शमन करता है। इस तरह से इन 3 द्रव्यों को हमने एक तरह से आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में भी, जहां हम आधुनिक मापदंडों को ले रहे थे, वहां हमने आयुर्वेद की परंपरा को नहीं छोड़ा, शास्त्र कथन को नहीं छोड़ा, क्योंकि जो कुछ भी करते हैं वो शास्त्र के आधार पर ही है। और जैसे अपने वात और पित्त कफ के विषय में, वात और थोड़ा कफ और पित्त के विषय में आपने बताया कि इसके जो 5 प्रकार हैं उनका जो प्रभाव है। इससे आगे जो मैं एक छोटा सा जो निवेदन कर देना चाहता हूँ आपको आयुर्वेद की दृष्टि से, कि इन द्रव्यों का यदि प्राचीन काल से आयुर्वेद में देखें तो बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग होता रहा है। पर कभी कभी बात आती है कि जो आधुनिक विज्ञान वाले जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद में जब इन रोगों का वर्णन कहाँ है, तो उसके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ। जो मैंने जनपद ध्वंस की विषय में बात करी, यहाँ ये जो हमारे सुश्रुत के अंदर बहुत स्पष्ट आयुर्वेद के सुश्रुत आचार्य लिखते हैं, ये सुश्रुत का कथन है, ये प्रसंगाद गात्र संस्प्रशान न श्वासात सह भोजनात् सह शय्यासनान् चापि वस्त्र माल्यानुपलेपनाद कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिषंद एव च औपसर्गिका रोगांश्च संक्रमन्ति नरान्नरम। इस तरह से स्पष्ट वर्णन है कि संक्रमण व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से, संबंध स्थापित करने से, संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क आने से, निश्वास लेने से, एक बिस्तर पर सोने से, ये बहुत स्पष्टता के साथ वर्णन है। इसीलिए आवश्यकता इतनी ही है कि उस प्राचीन विधा को, प्राचीन विज्ञान को आधुनिक विज्ञान सम्मत कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए आदरणीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के पतंजलि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला आज से कुछ वर्ष पहले रखी थी। उस आधारशिला ने आज दुनिया के अंदर आयुर्वेद को बड़े स्तर पर पहुंचाने का भगीरथी काम आज हम कर रहे हैं। बायोसेफ्टी लेवल 2 लेवल का हमारे पास सर्टिफिकेट है, सेफ्टी लेवल 3 का हमारे पास फैसिलिटी है, और दुनिया के अत्याधुनिक संसाधनों के साथ में, उन्नत और उत्तम तकनीक के साथ में आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाने के लिए हम सर्वथा प्रयासरत हैं, और उस कार्य को हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो मैंने जो आयुर्वेद के विषय में थोड़ा सा आपसे जानना चाहा वो निवेदन कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा, जो आपने अभी बोला है कि हमारे शरीर में 3 चीजें होती हैं, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर। मूवमेंट वात फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म पित्त फंक्शन है, और स्ट्रक्चर लिक्विड सिक्रीशंस कफा फंक्शन है। और 6 हमारे यहाँ पे टेस्ट होते हैं। इसके अंदर में स्वीट, सार एंड सॉल्ट, खट्टा मीठा नमकीन, बिटर एस्ट्रिंजेंट एंड पंजेंट, यानी कि कटु कसैला और तीखा। तो ऐसा कहा जाता है कि पंजेंट, सार एंड सॉल्ट यानी कि पंजेंट यानी कि तीखा, नमकीन यानी कि सॉल्ट एंड खट्टा, ये हमारे शरीर में अग्नि यानी कि हमारे शरीर के अंदर में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसलिए ये लोग आयुर्वेद में त्रिकटु देते हैं, जिसके अंदर में 3 चीजें हैं, जिसमें सौंठ है, जिसके अंदर में पिपली है, और इसके साथ में सौंठ एंड पिपली को मिला के और काली मिर्च को मिला के ये लोग हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। तो 3 ऐसे टेस्ट हैं, स्वीट, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट, कड़वा एंड कसैला और मीठा, जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इन्फ्लेशन, इनके हिसाब से इन्फ्लेमेशन पित्त का मल है, हमारे हिसाब से इन्फ्लेमेशन जो है वो साइटोकाइंस है। यानी कि कोई भी ऐसी चाहिए जो मेरे शरीर में पित्त के इन्फ्लेमेशन को, पित्त के मल को, जो 7 धातुओं का एक मल है, उसमें से जो रसा रक्ता का जो पित्त मल है उसको कम करने वाली जो चीज है, वो कोई भी चीज कड़वी, कटु और कसैली। सो का फॉर कोरोना, का फॉर कोविड, का फॉर कड़वा, का फॉर कषाय, का फॉर करेला, का फॉर कालमेघ, का फॉर केतफल,
और काफ और कटु, कटु के अंदर में जैसे इन्होंने बोला कि तुलसी, गिलोय और साथ में अश्वगंधा आती है। सो आयुर्वेद के अनुसार में आप क के फार्मूले से, और बहुत एलोपैथी सुंदर के डॉक्टर अंदर साहब, में कफ और कोरोनिल। जी काफ और कोरोनिल तो आप बोलेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं तो कंपनी में नहीं हूँ। और काफ और साथ में काफ और जो है इसके अंदर में अगर आप क का इस्तेमाल करते हो तो दूर से आपको याद रहता है कि जो चीज कड़वी और कसैली होगी तो शायद मेरे शरीर में अग्नि से होने वाली बीमारियों को कम करे, पित्त के मल को कम करे। और साथ में अगर मैं कटु यानी कि त्रिकटु साथ में लेता हूँ सो उसके हिसाब से आयुर्वेद के अनुसार में, अभी मैं सिर्फ आयुर्वेद को अपनी दर्शन से, अपनी मेडिकल साइंस से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आयुर्वेद के अंदर में केतफल है, वो भी एंटी हमारे पास में जो है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में दिया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लेवल पे काम करती हैं। अब मैं दूसरी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब हम कहते हैं सम दोषा सम धातु सम अग्नि मला क्रिया, तो ये सम अग्नि क्या है? ये जो अग्नि है, देखिए हमने 13 प्रकार की अग्नियों में से 5 दोष की ले ली और 10 हमने और हमने जो है 5 भूत अग्नि हो गए, 7 जो अग्नियां हैं जो धातु अग्नियां हो गई, एक जठराग्नि हो गई। धातु को छोड़ दीजिए, अब ये धातु अग्नि अलग हो गई, 5 अग्नियां अलग हो गई हमारे वात पित्त कफ की। अब जो 13वीं अग्नि जो जठर अग्नि है, जिसमें भगवत गीता में भी लिखा है कि मैं हम वाष्णे कि मेरे को, मैं जठर अग्नि हूं। तो ये जठर अग्नि का कोरोना से क्या ताल्लुक आता है? इज इट कि मेरे शरीर में जो बैक्टीरिया है जिसे हम माइक्रोबायम बोलते हैं उससे जठर अग्नि आती है? आयुर्वेद में जठर अग्नि है जो पाचक अग्नि है, उसमें जो दोषों का जो पाचन भी करता है, भोजन का पाचन भी करता है, विविध तरह के जो भी हम पदार्थ जो सेवन करते हैं उसका पाचन जो करता है, जो हमारी जठराग्नि है उसको, जो जठर है वहाँ पर जो अग्नि जो उसका पाचन करती है। तो इसीलिए ये जरूरी, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि बाकी जो अग्नियां हैं वो सहयोगी अग्नियां हैं, ये बहुत मुख्य अग्नि है। तो जैसा आपने कहा, इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपने मुझे पूछा भी, मुझे अच्छा भी लग रहा है। और मैं पूरे देशवासियों को बताना भी चाहता हूँ कि जो आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत है वो अत्यंत वैज्ञानिक हैं और पूरा विज्ञान से परिपूर्ण हैं और इतने सहज सरल हैं कि थोड़े से समय में उनको पढ़ा और समझा जा सकता है। परंतु इसमें समझने पर, क्योंकि हम यदि आयुर्वेद की दृष्टि से कोरोनिल या तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा जो मोड ऑफ एक्शन कैसे वो जाकर के काम करते हैं, संभवतः जो दुनिया के मॉडर्न साइंस वालों को न समझ में आए, इसीलिए वो तो औषधियाँ पहले भी थी, आयुर्वेद वाले प्रयोग कर भी रहे थे। हमने कोरोनिल के लिए हमने गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा लिख करके आयुष मंत्रालय को भी दिया, हमने जो ड्रग लाइसेंस अधिकारी को भी दिया। उन्होंने कहा ये तो साधारण सी सर्दी जुकाम कफ को ठीक करने वाली औषधियाँ हैं, ये ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकती हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर हो सकती हैं। तो क्षमा करिएगा डॉक्टर साहब, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आयुर्वेद के द्वारा मैं उनको ये समझा सकूं कि भाई साहब ये कोरोना को भी ठीक करती हैं। तो कोरोना को ठीक करती हैं, दो ही तरह से हम समझा सकेंगे, या तो कोरोना के रोगी खा करके जो ठीक हुए लोग हों वो जा करके कहें कि मैंने खाया था, मेरा कोरोना ठीक हुआ, या फिर मेरे साथ में अभी डॉक्टर अनुराग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो साइंटिफिकली वैज्ञानिक ढंग से हम लोगों ने इन विवो से लेकर के, इन विट्रो से लेकर के, एनिमल ट्रायल से लेकर के, ह्यूमन ट्रायल से लेकर के, जितने भी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि समस्या यही है, साइंस हमारा आयुर्वेद पुराना है, परंतु उस पुराने विज्ञान को जब तक हम आज आधुनिकी लोगों के लिए आधुनिक विज्ञान सम्मत, यानी कि दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने के लिए शायद इनको वाता पिता कफा पल्ले पड़ता नहीं है, इसीलिए हमने उनको साइंस की भाषा में समझाने का प्रयास किया। उसका ही परिणाम है कि आज डॉक्टर साहब हमने, क्योंकि COPP लेना आप जानते हैं, WHO GMP लेना वो इजी काम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल काम करती हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी औषधियाँ बनाते हैं, पर उनको सर्टिफिकेट वो
आयुर्वेद के कारण से नहीं, वो कहते कि आधुनिक जो स्टैंडर्ड है, पैरामीटर्स हैं, आप उसको फॉलो करिए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो बहुत कठिन काम होता है। इसी तरह से जब हम आयुष मंत्रालय के पास गए, वो कहते हैं कि आप हमको क्लिनिकल एविडेंसेस दिखाइए, रिसर्च पेपर दिखाइए। वातपित्त कफ के हिसाब से डॉक्टर साहब रिसर्च पेपर क्षमा करिएगा एक भी, हालांकि पतंजलि के प्रयास से हम लोगों ने जो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स में भी लैंग्वेज के रूप में या वीडियो अब्स्ट्रैक्ट के रूप में हमने संस्कृत और हिंदी को स्वीकार करवा दिया। ये पूरे आयुर्वेद और हमारी भारतीय संस्कृति की विजय है, पर वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद का नॉलेज, जितने भी पुराने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हैं, उस पर काम करने के लिए हमारी एक पूरी विद्वानों की पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। तो बाद में जब वो शास्त्रों से निकल कर की चीज़ आती है तो पूरा उसको आधुनिक रूप में ढालने के लिए पूरी फौज दिन रात काम कर रही है। हम बीच के कड़ी के रूप में श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में वो जिस तरह से हमको आदेशित करते हैं वो मैं करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आयुर्वेद के संदर्भ में इस चीज़ को आगे बढ़ाया, और आगे भी मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को कम से कम आयुष मंत्रालय को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि वातपित्त कफ दोषों के हिसाब से, जो हमारे वीर्य विपाक के हिसाब से हमको आगे अनुसंधान करते हुए उस व्यवस्था को भी वैश्विक रूप पर स्थापित करने का हमको प्रयास करना चाहिए। आचार्य जी, मैं एक चीज को लेना चाहूंगा कि जैसे हमारी 6 फिलॉसफीज हैं वेदों में। हाँ। पहली न्याय है और दूसरी वैशासिक है। उसके बाद में सांख्य फिलॉसफी आती है, उसके बाद में वेदांत फिलॉसफी आती है, उसके अंदर में फिर अलग अलग फिलॉसफी मीमांसा आती है। लेकिन हमारे वेदों में भी लिखा है कि न्याय यानी कि लॉजिक आपने आयुर्वेद से दे दिया, लेकिन न्याय के बाद में वैशासिक है कि हमारे को मॉलिक्यूलर लेवल पे भी प्रूफ करना है। क्योंकि हमारी फिलॉसफी में, वेदों में भी ये लिखा है कि जो लिखा हुआ है वो तो मीमांसा हो गया, कि जो लिखा है उसको बिना समझे फॉलो करो। लेकिन हमारे देश में क्योंकि वैशासिक फिलॉसफी वाले लोग भी हैं तो उन्हें हमें उस लैंग्वेज में बात करनी होगी। और 6 प्रमाण भी दिए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष, जो आपने कहा हमने देखा, लेकिन प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान भी चाहिए, जहाँ पे आपको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल चाहिए। फिर उपमान भी चाहिए, जहाँ पे एनालॉजी करोगे कि अगर ये काम करेगा तो ये भी काम करेगा। उसके साथ में, उसके बाद में अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द भी, और फिर हमारे को शब्द भी चाहिए। सब प्रकार के प्रमाण चाहिए। जैसा आपने कहा कि सरकार ने आपको प्रमाण मांगे कि हमारे को, तो हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि न्याय फिलॉसफी भी है, न्याय के बाद में वैशासिक फिलॉसफी भी है। अगर मैं वैशासिक फिलॉसफी को प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान में लेके चलूं तो अनुमान का मतलब यही है कि मेरे को उसको साइंटिफिकली डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल में प्रूफ करना है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि आयुर्वेद में हमें डबल ब्लाइंड स्टडी नहीं करनी, वहां पर भी करनी है, क्योंकि ये वेदों के ही प्रमाण है। आइए हम अनुराग जी से समझने की कोशिश करते हैं कि आपने आयुर्वेद की इस दवाई को वैशासिक फिलॉसफी यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, वैशासिक मींस एट द लेवल ऑफ फिजिक्स, at the level of atom, at the level of cytokine, at the level of हर चीज, that is वैशासिक, and that too at the level of along with अनुमान, कि आपने एक हाइपोथेसिस ली। तो 3 हाइपोथेसिस के बारे में मुझे आपसे समझना है कि आपने क्या किया। नंबर 1 कि आपने बोला कटु एंड कसेला, आपने 3 प्रोडक्ट ले लिए कटु एंड कसेला के। नंबर 1 आपने लिया कि इससे एंटीवायरल इफेक्ट होता है कि नहीं होता। अगर एंटीवायरल इफेक्ट होता है तो कहां पर होता है? वायरल के इफेक्ट में या तो एंट्री पे होगा, या प्रूफ रीडिंग पे होगा, या रेप्लिकेशन पे होगा। दैट्स 1। दूसरा, मेरे शरीर में क्या ये मेरी मल अग्नि को या मल पित्त को कम करता है कि नहीं करता, यानी कि साइटोकाइंस, यानी कि सीआरपी, इंटरल्यूकिन 6, डी डाइमर कम करता है कि नहीं करता, करता है तो कितनी देर में करता है। और तीसरा, अगर ये मेरे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करता है और सीआरपी कम करता है तो उसके कारण से आगे जाके, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो आयुर्वेद की मैंने जब डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर तनुजा को, तो उन्होंने कहा कि जब हमने गिलोय और हमने आयुर्वेद फॉर्मुलेशन दिए तो हमारे को पोस्ट कोविड इफेक्ट्स कम मिले। हालांकि आयुर्वेद मंत्रालय ने तो उसके अंदर में कटु और उसके साथ में मीठा भी डाल दिया है, च्यवनप्राश बोला है कि उसके लिए लो, तो उसके साथ में, क्योंकि उन्होंने कड़वा कसेला के साथ में मीठा भी डाल दिया है उसके साथ में।
सो मेरे को ये बताइए, इन 3 चीजों में आप लोगों ने क्या स्टडी करी, किस लैब में करी, क्या उसका एविडेंस था, कहाँ कहाँ छपी, और उनकी ऑथेंटिसिटी क्या थी? ठीक है, जैसे आचार्य जी ने कहा आपके पास BSL-2 लैब है, आपके पास BSL-3 लैब की फैसिलिटीज है, इसका मतलब है आप एनिमल स्टडीज भी कर रहे हो। सो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप ACE2 रिसेप्टर्स को भी बाहर निकाल सकते हो। इसका मतलब है कि आप कोरोना के वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन को आर्टिफिशियली, जैसे लोग आज की डेट में टेस्ट कर रहे हैं, आप उसको लैब में मिला के एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन भी देख सकते हो। तो इसके बारे में अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो बताइए। प्रणाम सर, आपके इन ज्वलंत प्रश्नों का जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी, और आचार्य जी को प्रणाम करते हुए और स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो प्रेजेंटेशन हमने शेयर किया है, अगर हम वो प्ले कर पाएँ तो मुझे आपको समझाने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। ऋतु जी, और मैं सीधा अनुरोध करूंगा कि हम स्लाइड नंबर 2 पे आ जाएं। तो पूरे प्रेजेंटेशन में लगभग 26 स्लाइडें हैं सर, और मैं पहली 3 स्लाइड्स उन 3 मेन चीज़ों पे लेके आया हूं जो आपको और सब जनता को बताना चाहता हूं कि ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये COPP WHO GMP सर्टिफिकेट है जो कोरोनिल को दिया गया है बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, which gives it the eligibility to export coronil to 158 countries across the world। और जो आप वर्ल्ड का मैप सीधे हाथ पे देख रहे हैं और जहाँ पे वो जियो मार्क्स लगे हुए हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोरोनिल को एक्सपोर्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्टिफिकेट गिवन बाय द DGCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर WHO GMP COPP सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रितु जी, क्या आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं? या ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है जो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उत्तराखंड द्वारा दिया गया है कोरोनिल के लिए, एंड जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि कोरोनिल कैन बी टेकन एज ए मेडिसिन एज अ सपोर्टिंग मेजर फॉर COVID-19। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये WHO का जो इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म है, ये उसका स्क्रीनशॉट है जहाँ पे जो हमने क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया था उसकी एंड लिस्टिंग दिखाई जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन तीनों स्लाइड्स को मेरा दिखाने का औचित्य और उद्देश्य सिर्फ इतना ही है सर कि जो मेन टेक होम मैसेज हैं इस प्रेजेंटेशन से और डिस्कशन से, वो सबसे पहले दिखा दिए गए हैं। और अब मैं उन तरफ बढ़ता हूं जहां आपने क्वेश्चंस पूछे मुझसे, और वो बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस है और मैं उन सबको कवर करने का ट्राई करूंगा। अभी ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं स्टेज पे, ये बेसिक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है कि COVID-19 कैसे होता है। आई एम श्योर आपने अपने पिछले 1000 से ज़्यादा शोज़ में इस सबको पूरी ऑडियंस को समझा दिया होगा कि ये कैसे काम करता है, बीमारी कैसे होती है, अब तक कितने प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, इसके साइको सोशल बर्डन पे कितना इफेक्ट है और इकोनॉमिक्स पे भी कितना फ़र्क पड़ता है। इन सब बर्डन्स के बाद पतंजलि ने जो एक अप्रोच अपनाया और देखा कि इस बीमारी से कैसे कॉम्बेट किया जाए, और उसका एक तरीका है कोरोनिल, स्वसारी एंड अणु तेल, जो मैं अगले 20 स्लाइड्स में आपको कवर करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये कंटेंट है सब स्लाइड्स के। द बेसिक फंक्शन इज टू टॉक अबाउट द साइंटिफिक रैशनल फॉर द जेनेसिस ऑफ कोरोनिल, इन विट्रो वैलिडेशन ऑफ कोरोनिल इफेक्ट ऑन द SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन, जो सर आपने मुझसे भी कहा था उसके बारे में। Chemical composition analysis of coronil, which is a very important one to actually show that the compound does exist in the medicine and it is there in all the batches which have been manufactured here. And then we went for evaluation of preclinical efficacy of coronil, clinical investigation, which has 3 main components. First, that you talked about Anuman, what you called a randomized placebo controlled clinical trial, clinical observation studies and psychosomatic studies on the people who have been detected COVID positive and then who chose to take coronil sosarecate, and see how the psychologically the fear, the anxiety was modulated when the drug was available to them for treating themselves. Next slide please. So here is a slide with what Pooj Acharya talked about, that we have taken close to 1,500 different plants, 1,500 different compounds from close to 200 herbal plants which are classically described in Ayurveda, and we could screen down 3 different plants. One is Ashwagandha, Withania somnifera, second is Giloy, Tinospora cardifolia, and third is Tulsi, Ocimum sanctum.
And what we found that not all the compound from these plants were affecting the COVID virus. And when I said the effect, I simply mean to say that the way virus could enter inside a human host cell, or it could get replicated inside the host cell. So first two things what you see on the top of the slide, Vithinone and tinocorticide, they were actually detected or predicted to inhibit the entrance of the virus inside the host cell. And that entrance is actually done by the spike protein's receptor binding domain, binding it to the ACE2 receptor of the human host cell. And we could find that the Vithinone and tinocorticide could inhibit that interaction at a much higher significant binding energy reduction. We could do the simulation and could find that yes, even for close to 1000 nanosecond simulation, those interactions were broken up. The salt which were made between these two proteins, those were also broken up. Sculptrine, which is a compound from tulsi, this actually binds very well to RDRP. RDRP stands for this RNA-dependent RNA polymerase, which is a specific protein required for the virus to make a copy of its RNA. As most of your audience would be knowing it, that SARS-CoV-2 is a RNA virus, so that making a multiple copy of the virus is actually very important, which get inhibited by the compound coming from tulsi. On the same slide, I have also already marked. Can I have the slides? Yeah. So the work that we have done for Vithinone and tinocorticide has been already published. The work for Vithinone is right now in press for drug design, discovery and development, which is a journal from Dove Press, impact factor close to 4. And the study from tinocorticide have been also published in the Bentham publication of computational modeling. What I also want to say that once we published or put up a preprint of Vithinone in March 2020 in Springer Nature preprint server, it excited other researchers in India too. And at the bottom of the slide, you could see the third-party validation, what we say, that people also start to look for different components of ashwagandha, whether they can have an efficacy or at least a computational efficacy in the interaction of virus with the host cell. And we are very happy to say that our ignition towards the thought came out as a pretty good success from the other group too. Next slide, please. So this is a biochemical validation. So what we saw earlier was a computational prediction, but does it really happen inside a cell, or does it really happen when you have two binding proteins present? So this is the molecular interaction that you asked about, sir, where the two molecules really interacts, and the answer is yes. We actually procured the spike protein from SARS-CoV-2 and also got the ACE2 protein, the one they talked about, which is present in the human cells, and could actually help them interact inside the test tube in a cell-free system. That's we call biochemistry. And then we measured the interaction of that, and in presence of the Vithinone and tinocorticide, and we could find that Vithinone indeed inhibited that interaction in a concentration-dependent manner with a very specific IC50, what you generally see for a pharma industry kind of compound. The IC50 was found as 0.33 nanogram per ml, which is actually pretty much strong as you expect for a compound to show that kind of efficacy. That work has been also published in the same journal that we talked about. So the next slide, please. So this one talks about the further biochemical validations of these interactions, and then we chose to do those works by the CORONIL as well. So the point there is that CORONIL was formulated by using ashwagandha, giloy, and tulsi, and the purified compound from ashwagandha showed an efficacy. Then we went ahead and thought, what does happen if we take CORONIL as such and try to look for those parameters? Next slide, please. So this slide actually shows the interaction between ACE2 with the SARS-CoV-2 spike protein, whether that is getting inhibited by the CORONIL. So the left graph on the top side shows the concentration dependent change in the interaction parameters, and this is done with the wild type, or at that time whatever was the wild type of the spike protein present there. And then from the instructions of Acharya, we went ahead to look for the different mutants which were
prevalent at that time when we did the research. And we are happy to report that we looked for two different mutations, not the one that we talked today. We looked at the D614G and W436R. So these are the two strong mutants which have been reported for COVID virus. So we got a spike protein from that mutation and could actually show that CORONIL indeed inhibits those mutant spike protein interaction with the ACE2 as well, which would actually indicate that yes, indeed, if there is an mutant form available, or if a person having these kind of infection with these mutant viruses, mutant COVID viruses, CORONIL would be able to take care of that as well. Next slide, please. So here we come to the next part. What we talked about, sir, about cytokines. Cytokines are the marker, and as you said very correctly, cytokines are indeed the master player, the molecular switches that control inflammation. So we chose to look for this approach where we took the human lung cell lines A549 and took these three different spike proteins that we've shown in the earlier slide, and we dumped those spike protein on A549 cells and looked for the response for three major cytokines: IL-6, TNF alpha, and IL-1 beta. And what really happens that these spike proteins does induce the cytokine release. That means the cytokines were there in the cell soup. We could measure that by using ELISA, and in presence of CORONIL, it was also inhibited in a concentration dependent manner. So that actually went ahead to show and gave us a very clear indication CORONIL indeed inhibits the excited level of cytokine secretion which happen by the viral proteins. Next slide, please. These studies are also published in the Journal of Inflammation Research, Impact Factor 5. And as we saw earlier, we also went to go for the next stage, and this is one of the classic experiment, and I'm very happy for my microbiology team led by Dr. Swati Haldar with other team members, Dr. Hushyar Singh as well, where we went ahead and looked for a scientific collaboration from Germany. Professor Stephen Pohlmann from Linzwig Institute. He was very kind to share the expertise he has developed, and the expertise was to generate pseudovirus. Since we could not culture a SARS-CoV-2 virus because it's infective in nature and required BSL-3 facility, even up to a level of BSL-4, we had a BSL-2 facility. So we chose to manufacture a virus which would have a spike protein of SARS-CoV-2 on the surface of it, but it would be non-infective in nature to deal with. And smartly, we also filled up a luciferase gene, the gene that's going to light up whenever the virus is present inside that virus. So that pseudo virus was assembled, manufactured in the research laboratory of Patanjali Research Institute. As you correctly said, that's the one thing one should do, and we're very happy to report and feel very proud about it that we did it 6 months before, and generated those virus and then look for the entry of those pseudo virus inside the human lung cells. We got two different cell lines. One is the A549 cells, which is the lung alveolar cells, and we also got BS2B cells, which is the upper airway cells coming from the bronchus. In A549 cells, we could clearly see, if you look at the slide at the bottom right, where we have the word says entry inhibition, the bar chart shows very clearly that indeed CORONIL could inhibit the viral entry inside the human cells. And that was the proof of concept we are looking for. This was the first cell biological proof of efficacy that we could see that CORONIL inhibited the viral entry in a concentration dependent manner. The pink bar that shows it starting from 1 microgram per ml goes up to the 10 microgram per ml. And not only CORONIL inhibited the viral entry, it also inhibited the pseudovirus induced cytokine release from these cells. And the bar chart in the center that you see around an oval shape shows again the same three cytokines, IL-6, TNF alpha, and IL-1 beta. All three of them got inhibited in a dose-dependent manner by CORONIL. So that shows the CORONIL treatment could rescue the cells, in this case, from the cytokine storm. This work has been, of course, published in the Journal of Inflammation Research. Next slide, please. So here comes the chemistry. So once we have a
a drug-like molecule or a medicine in our hand. It's empirical, and it's very important that we show what are the chemical constituents for it. And we actually employed 3 different technologies to actually confirm that. The first one, what you're seeing on your screen, is the LCMS, liquid chromatography mass spectroscopy, where we could actually identify 44 phytocompounds present in CORONIL tablet. And we did for multiple batches, multiple tablets, and we could actually get pretty much the similar data every time. Next slide, please. Here what you're seeing is HPLC, high performance liquid chromatography, where we could actually quantify the amount of compound presented over there. So we could see close to 11 different compounds that we could identify from different batches, and which again have been now published in Journal of Inflammation Research. Next slide, please. And this slide shows you HPTLC, high performance thin liquid chromatography, where we could actually look for the specific compounds and could confirm whatever the finding we had from HPLC. So what you see, the gels on the top, which are there for the purified compound, the normal standards, and the band in the center talks about the coronils. So that shows that yes, those compounds are present in the right amount, and it is there from all the batches. We have now data for 50 odd batches, and our recent publication, which is out there very soon, are talking about the 15 different batches of CORONIL tested across a 3 months time duration of manufacturing. Next slide, please. So once we finish the in vitro work, then the challenge happens that what we can do in vivo. And I'm sure, as most of you would be knowing it, COVID virus does not infect rats and mice. The rodents are actually not sensitive for COVID virus. So that becomes very challenging, because most of the time when you do the experiment with the animals, you go towards mice and rats. So then the thought comes that what we can do, is there something that we can explore? And then we chose to go towards zebrafish. So zebrafish is an invertebrate and is a very well established animal model for variety of research, and we have done considerable amount of work in past, including the work on dengue, which is the medicine for dengue, which was done earlier, and we could show that we could infect zebrafish with the dengue virus and could actually rescue the effect of it. So we chose, if we already had a past success, how would we do it now? But the trouble happens, the COVID virus is a virus of respiratory system. It affects the lungs at the first place. And the fish, unfortunately, have no lungs. So how are we going to do about it? So then we chose to look for the analogous organ inside the fish. And we found swim bladder. Is an air sac which is there inside the fish, which is used by the fish for remaining buoyant. It used to take it going up and down inside the water. So we then went ahead, took the human lung cells, transplanted inside those air sac, and waited for several days for those cells to get stick over there and grow. Once that happened, we get a humanized zebrafish model, and those humanized zebrafish were then challenged with the spike protein of SARS-CoV-2 virus. And as expected, the SARS-CoV-2 spike protein induced severe form of inflammation, which could be measured by a different cytology, which you can see in these slides. And you can see the different inflammatory cells migrating, like granulocyte, lymphocyte, and macrophages at the site of the injury. We could also measure the behavioral fever in the fish, and we could also follow it up the cytokine response that we see inside the intact animal. So the next slide shows you the data. Well, I think this one slide is missing. Can we go back to earlier slide, please? Yeah, so this slide shows the different cytological parameters. This may be a very busy slide to show, but I want to take your attention towards the right hand side, where you're looking the set of bar charts, 4th day and 7th day. So these are the data where you're looking for cytokines present inside the cytokines present in the serum of the fish, which get inhibited by the human relevant doses of CORONIL in a dose dependent manner. And we look for the 3 different cytokines as usual, IL-1 beta, TNF-alpha, and IL-6, and they get inhibited considerably. In addition, CORONIL also rescued the fish from behavioral fever. It ameliorated the inflammatory response and also prevented the kidney necrosis. These results have been published in the Journal of Molecule Impact Factor 3.5 3 months before.
Next slide, please. I think we jumped a slide. There's one more slide in between. Can you go back, please? One more. Yeah, this slide. So this slide is the slide which I think going to take the attention from Dr. K.K. Aggrawal, that this slide shows the molecular pathway which might be getting inhibited in order to control the cytokine response. So we could show from our in vitro, biochemical, as well as animal experiments that CORONIL indeed moderated the expression level of IL-6, TNF-alpha and IL-1 beta. Then the question comes, under what pathway? So we could find, this is there out there in the literature from other work, that ashwagandha, giloy and tulsi indeed could play at different switches of this molecular pathway. We found that IRF3, we also found for TVK1 and NF-kappa B, which get inhibited by ashwagandha and tulsi, whereas giloy could actually moderate the expression in the pathway of P38, J and K, and also a little bit of NF-kappa B. So those transcriptional control of IL-6, TNF-alpha and IL-1 beta would be a right way of controlling these release in the cell lines, in the animals, and of course in the humans. And the data of humans I'm going to show in my next slides, please. Next slide, please. So here comes about the randomized placebo-controlled clinical trials. These trials were conducted at NIMS University, Jaipur, under the leadership of Professor B.S. Tomar. These were conducted in the month of May and June. And at that time, the corona was at its prime, and we could get hold of a COVID center where the COVID positive patients were actually recruited. So all of these patients in this trial were COVID-19 positive by RT-PCR. Close to 100 patients were recruited, and they were divided into two groups. One group was giving a placebo, which is one of the rare thing in Ayurvedic drugs. Sir said it very nicely that, randomized trials are very important. But having a placebo-controlled randomized trial, it's the real requirement for any success. So the team from Patanjali, the team from Divya Pharmacy were very kind enough to generate the placebo tablets, which look and feel like the normal medication we have. And here we actually had the main components of CORONIL, which is ashwagandha, giloy and tulsi, along with swasari and anutela, which were given to the patients. And the primary endpoint was to look for the rate of recovery from a COVID positive getting COVID negative and number of days it takes it. Next slide, please. So this slide is actually a summary result that you can see very easily. Primary endpoints, positive become negative. So the bar chart on the left shows that the placebo group, which is orange in color, and green color bar shows the treatment group. So patients within 7 days got completely recovered. 100% recovery was observed in the patients who were given the Ayurvedic medicines, whereas the placebo group got a 60% recovery, so which were actually very exciting, which was the first primary target we set up for our experiment, and our team were very happy to report that yes, indeed, it meet the target that we set it out. We could also see the proportion of recovery, which actually was faster in the treatment group. Next slide, please. Next slide, please. Excuse me. Can you hear us, please? Sir, are we audible to you? Sir, can you go to the next slide, please? I've just 3 more slides left. No, I think we went too fast. A few more slides earlier, where we're going to show the C-reactive proteins level. One more back, please. Yes, ये वाला. ये. So इस स्लाइड में हम ये देख पा रहे हैं जो प्लेसिबो कंट्रोल है, जो ऑरेंज कलर के बार हैं, और जो ट्रीटमेंट है जो ग्रीन कलर के बार हैं, कि फ्रॉम डे 1 टू डे 7 प्लेसिबो में CRP लेवल कितना था और जो ट्रीटमेंट है उसमें CRP लेवल कितना था. And it's very clear that there is a statistically significant change in the serum CRP level of the patients who were given Ayurvedic medicines. It was 12.4 times lesser than the placebo group.
This study, the whole clinical trial outcome, which I am talking in last couple of slides and two more slides, have been published recently in the journal Phytomedicine. Next slide, please. Here we see the TNF alpha. So this was a cytokine that we could focus, and we could get the reagent and have that been measured in the patient serums. And as you can see, similarly like HSCRP, the TNF alpha level was also significantly downregulated in the patients who were given the Ayurvedic treatments. Next slide, please. So that was the data we had for the controlled clinical trial conducted in Jaipur. In parallel, or slightly earlier to that, we also could conduct a clinical case study in some patients in the COVID center in Ahmedabad, where the people were given a choice to take Ayurvedic medicines alone or in parallel with the allopathic medicines. And there was close to 500 patients who were given that option, and they chose to do that therapy. And we are happy to report that the patients who were given the Ayurvedic medication shows a much faster recovery from COVID-19 infection. This work is under final review in Journal of Herbal Medicine. Next slide, please. And this is the one that I was talking about, the influence of patient reporting treatment satisfaction on the psychological impact and quality of life by CORONIL. So these are the patients, close to 367 patients who were actually interviewed for a various parameter of the quality of life, also anxiety, stress, effectiveness and the convenience, as well as the global satisfaction for the treatment. And the basic questionnaire design was done in such a way that they were asked whether they were having a different degree of depression, anxiety and stress with the COVID-19, and if the drug is available in form of in form of CORONIL associate, how was their level. And we could actually see very clearly that out of those 367 patients, we could see that increased treatment satisfaction with the CORONIL kit lead to decreased psychological impact and increase the quality of life in all of the study participants. This work is right now under final review in Journal of Clinical Medicine. Next slide, please. And probably the last slide, yes. So summary, the scientific summary that we talked about, sir, so far is that we have observed, reported and talked about the pharmacological effects of CORONIL as an inhibitor of SARS-CoV-2 spike protein mediated entry of virus into the lung cells, that we established it beyond any reasonable doubt. CORONIL disrupt the interaction between the SARS-CoV-2 spike protein and human ACE2 receptor. CORONIL modulated SARS-CoV-2 spike protein induced cytokine storms in the human lung cells. CORONIL ameliorated SARS-CoV-2 spike protein induced pathological symptoms in humanized model of disease, which is a zebrafish model we talked about. And we are very happy to report as well, the data is not shown here, which is a very important point too, that we have conducted 28-day repeated tox study in rats and rabbits under GLP norms for CORONIL and went up to a 1000 milligram per kg daily dose. So this is 1000 milligram per kg dose of CORONIL, give it for 28 days in parallel, and in rats and in rabbits, and we are happy to report there was not a single tox finding that have been shown. So this is actually almost 10 to 15 times of the human dose that we are talking about. So this is a good tox data which is done under GLP mode. In clinical studies at NIMS University, CORONIL expedited the recovery in COVID-19 positive patients. As I said, 100% recovery was observed within 7 days as compared to 60% seen in the placebo group. And in our psychosomatic studies, there are actually more than one now, where we could show the CORONIL treatment exhibited a significant satisfaction leading to reduced stress, anxiety, depression, along with the improved quality of life. Thank you very much. So thank you, Anurag ji. So I'll first of all come back to Acharya ji for some time, and then both of you can stay here. My first thing is, how is CORONIL different from आयुष रिकमेंडेशन? जो आयुष ने दवाइयाँ लिखी हैं उनमें और इसमें क्या फर्क है? आचार्य, उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि आयुष की कोई भी दवाइयाँ अभी तक इतने सारे एविडेंसेस और इतनी सारी प्रोसीजर्स के साथ में अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है कि पतंजलि के द्वारा जो कार्य किया गया है, आपने देखा होगा ये पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है।
कंपाउंड वही है। आयुर्वेद में हमने पिछले साल 2020 मार्च को 27 तारीख को आदरणीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी आयुर्वेद के जो विज्ञ जो लोग हैं उनको बुला करके ये कहा था कि आयुर्वेद के द्वारा कोरोना के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उस दिन हम लोगों ने, क्योंकि जो सिमुलेशन वाला जो डॉकिंग वाला काम हमारा हो चुका था, तब हमने कहा था कि हम अश्वगंधा, तुलसी और ये गिलोय को लेकर के काम कर सकते हैं। और श्वसन तंत्र के लिए जो श्वासारी जो घटक है हमारा श्वासारी वटी के अंदर, जिस त्रिकटु की बात आपने करी, दालचीनी की बात आपने करी, और जो उसके अंदर जो मुलेठी की बात आपने करी, वो सारे द्रव्य उसके अंदर हैं, उसके द्वारा काम हो सकता है। और आयुष मंत्रालय को भी सबसे पहले मैंने उसको लिख करके इन द्रव्यों को दिया था माननीय हमारे कोटेचा जी को। और मुझे खुशी है कि आयुष मंत्रालय ने बाकी एक्सपर्ट के साथ भी उन्होंने बात करी होगी, उन औषधियों को प्राइमरी लेवल पर प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने रिकमेंड किया। तो इस बात की हमें खुशी है। परंतु उसके बाद में भी अभी तक आयुष मंत्रालय अपने ढंग से कार्य करता रहा, अवेयरनेस जनरेट करता रहा, लोग भी काढ़े पीते रहे, उसका लाभ उनको जरूर मिलता रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभाव तो औषधि का होता है, पर उस प्रभाव को स्थापित करने के लिए पूरा काम करना पड़ता है। उस काम को केवल और केवल पतंजलि ने किया है। उसके बाद में भी प्रश्न करने वाले लोग अनायास या अज्ञानता से, मैं कहूँ आग्रह से, वो प्रश्नावली भी करते जा रहे हैं। मैं 2-3 चीजें मैं बोलना चाह रहा हूँ जो मुझे समझ में आया है अभी तक। कि नंबर 1, आपने एक लॉजिक लिया कि कटुवन कषाय इस बीमारी में काम करेगा, तो आपने कटुवन कषाय में से 3 दवाइयां ले ली बेस्ड ऑन चरक एंड संहिता, कि आपने अश्वगंधा लिया, गिलोय लिया और तुलसी लिया, इस लॉजिक से कि वो वायरस कोई भी हो, कोई भी स्ट्रेन हो, नई स्ट्रेन हो, कोई भी म्यूटेशन हो, काम करेगा। डॉक्टर साहब एक मिनट थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा निवेदन ये करना चाहूंगा, जैसा आपने कहा आयुर्वेद के, एक बार पूरा सुन ले, मेरे को पूरा सुन ले एक बार। जी। फिर आप लोगों ने इस लॉजिक पे आप वैशेषिक फिलॉसफी में गए, फ्रॉम न्याय, और आपने कहा कि हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, फेज 1 ट्रायल करेंगे, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल करेंगे, लैब का ट्रायल करेंगे, जानवरों में ट्रायल करेंगे, फिश में ट्रायल करेंगे। और आप लोगों ने ये प्रूफ किया कि ये दवाई आरडीआरपी में तुलसी काम करती है, क्योंकि आरडीआरपी में रेमडेसिविर और फिरोपिराविर काम करती हैं। यानी कि ये दवाई रेमडेसिविर और फिरोपिराविर वाला काम करेगी, या उसको असिस्ट करेगी, या उसको सपोर्ट करेगी। सो आरडीआरपी में हमारे जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं उसको ये इनहिबिट करेगी। फिर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे ये देखा कि ये वायरस के लोड को भी कम कर रही है, यानी कि 2 कारणों से, एक TMP-RSS यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन सीरीन एंड फ्यूरिन इनहिबिटर कर रही है, तो वहां पे वायरस की एंट्री को रोक रही है, और ACE2 के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है, जिससे वायरस की एंट्री कम हो रही है। तो आपने एक्सपेरिमेंटल फेजेस में ये प्रूव कर दिया कि ये दवाइयां, खासकर गिलोय एंड साथ में अश्वगंधा, ये 2 दवाइयां वायरल लोड को कम करेंगी एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे। फिर आप लोगों ने एनिमल मॉडल पे ये भी प्रूव कर दिया कि ये शरीर के अंदर में, मेरे शरीर में साइटोकाइन जो कि पित्त मल है उसको भी कम करेंगी। और आपने 3 चीजें दिखा दी इसमें, IL-6 दिखा दिया, CRP दिखा दिया, TNF अल्फा दिखा दिया, और IL-1 बीटा दिखा दिया। फिर आप लोगों ने ये भी दिखा दिया है कि सीरो वायरस क्रिएट करके कि 2 पाथवे के अंदर में, एक TLR विच इज टॉड लाइक रिसेप्टर और एक NLR विच इज नॉट लाइक रिसेप्टर। तो आपने TLR से दिखा दिया कि साइटोकाइंस कम होते हैं, और NLR से दिखा दिया कि आपने कप्पा बीटा, जो न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी पाथवे के अंदर में जाके भी ये साइटोकाइंस को कम कर रही है, जो असर कलौंजी में और कालबेग में भी दिखाई देता है। तो सारी जितनी भी दवाइयां हैं उसके अंदर में आपने ये सारा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। वेरी गुड, आपने साइंटिफिकली मॉडर्न मेडिसिन की तरह जैसे रिसर्च होती है साथ में आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दी ना। अब अगर आप इसको ऐसे आयुर्वेदिक दवाई ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, खुश होने चाहिए कि आयुर्वेद ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस तरीके से भी रिसर्च कर सकता है। लेकिन इसको अगर आप DCGI को चाहते हो कि ये मॉडर्न मेडिसिन भी इसको लिखे और इसको अप्रूव करे, तो इसको आपको ICMR और साथ में बायोटेक्नोलॉजी के साथ में आपको इसके अंदर में नंबर 1 वायरल लोड हमें दिखाना पड़ेगा कि अगर ये वायरल लोड कम कर रहा है
तो फिर ये सीटी वैल्यू भी कम कर रहा है इसके अंदर में। आरटीपीसीआर की सीटी वैल्यू को ये बढ़ा रहा है कि जिनको ये मिला उनकी सीटी वैल्यू बढ़ गई, जिनको नहीं मिला उनकी सीटी वैल्यू नॉर्मल रही। तो हमें पता लग जाएगा कि ये वायरल लोड कम कर रहा है। या फिर हम वायरल कल्चर करें, अगर आपके पास BSL-3 की फैसिलिटी है तो आप लोग तो सरकार के इतने इंडिकेट हो कि आप उस 9वें का 10वां सेंटर अपने यहाँ बना सकते हैं जहाँ पे वायरल कल्चर होता है। और अगर आप वायरल कल्चर करके दिखा सकते हैं तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा। दूसरी चीज आपने करी कि हमने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर में, क्योंकि ये 100 केसेस का पायलट स्टडी है, तो इस स्टडी को आपने और लंबा करके सेकेंडरी फेज में ICMR को और बायोटेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं क्लिनिकल केसेस के अंदर में कि क्योंकि ये सारे केसेस जो आपने लिए माइल्ड लिए हैं, मॉडरेट और सीवियर केसेस में मेरे को जो मीडिया से पता लगा है कि आप उस पर भी ट्रायल कर रहे हो, लेकिन उसकी अभी एनालिसिस बाहर नहीं आई है। सो माइल्ड केसेस के अंदर में अगर हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जैसे आपने कहा 20 गुना CRP, TNF अल्फा, IL बीटा कम हो रहा है, तो फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की मुझे डॉक्टर तनुजा की वो स्टडी याद आती है जो कहती है कि हमारे को पोस्ट कोविड लोगों को लॉन्ग हॉलर सिंड्रोम नहीं हुआ जिन लोगों को उन्होंने अश्वगंधा या गिलोय या आयुष वाले ट्रेडिशनल आयुर्वेद की बेसिस पे दवाइयां दी। तो सो अगर हम लोग ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आई अगेन से you may have to involve ICMR, you may have to involve biotechnology. उसके बाद में अगर आप ये प्रूफ कर सकें कि इन दवाइयों में इवन इन माइल्डर केसेस कि हमारा लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट जल्दी रिकवर हुआ, पोस्ट उनको जो जिन लोगों को पोस्ट के अंदर में 70% लोगों को माइल्जिया हो रहा है वो नहीं हो रहा, तो फिर ये एक इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इसमें क्या है अगर हम इसको प्रूफ कर सकते हैं तो ध्यान ये रखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कटु एंड कसेला, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द म्यूटेशन। इसको म्यूटेशन से फर्क नहीं पड़ता, वो म्यूटेशन A हो, B हो, C हो, D हो, ये हर म्यूटेशन पे काम करेगा। क्योंकि आपने एज ए कॉन्सेप्ट बात करी है, एज ए कॉन्सेप्ट में देन यू कैन कंपेयर विद कलौंजी एंड काल्मेक टू फाइंड आउट द डिफरेंस। हमारी मॉडर्न मेडिसिन में कोल्चिसिन कम्स एट द लेवल ऑफ कप्पा बीटा न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा पाथवे। आप रिसर्च करके उससे भी कंपेयर कर सकते हो, एड ऑन भी कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ इस बात की खुशी है कि अभी आपका जो डेजिग्नेशन है वो एज ए सपोर्ट थेरेपी है, विच इज गुड, बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीबडी टुडे कैन क्लेम ए क्योर, बिकॉज ना हम कर सकते हैं क्योर, बिकॉज ये वायरल लोड कम करेगी, ये वैक्सीन का रूप नहीं ले सकती कि कोरोनिल ले लो और वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये है वैक्सीन तो आपको एंटीबॉडीज परमानेंट बनाएगा, ये तो है जब तक खाओगे तो उस वक्त में वायरस घुसेगा तो उसको रोक दोगी, जिस दिन बंद कर दोगे। तो दीज आर दी मेडिसिन्स व्हिच आर बेसिकली फॉर रिड्यूसिंग द वायरल लोड एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। क्या मैं जो मेरी सोच है आप लोग यही बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ या डिफरेंट है? इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि ICMR के द्वारा ये इसको हम कार्य आगे बढ़ाते। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ हम लोगों ने पूरे एडी से चोटी तक जोर लगाया। ICMR एक ऐसी बॉडी है, मैं क्योंकि ज़्यादा आपने कहा नकारात्मक हमको बात नहीं करनी है, वो प्रयास जारी है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दूसरी बात हमने कहा कि बायोटेक के विषय में आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी वो प्रयास जारी है। दो चीज़। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि लैब आपकी अपनी है, क्योंकि आपकी अपनी पूरी लैब के अंदर में एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, तो उसके लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी को साथ में लेना होगा। क्योंकि याद रखिए आपकी लैब अपनी है, जो लैब की फैसिलिटी आपके पास में है बहुत एडवांस्ड है, तो उसके हिसाब से जब तक आपको वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटा के नहीं करेंगे तो उसके लिए चाहे आपको ICMR से करना पड़े, चाहे विदेशी एसोसिएशंस के साथ में करना पड़े, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के साथ में करना पड़े। देखिए मैं टोटली आपने जो प्रेजेंटेशन किया है दैट मेक्स सेंस, लॉजिक करता है। लॉजिकली आपने जो लॉजिक प्रस्तुत किया वैशाखिक में भी वही देखा, जो न्याय में था वही वैशाखिक में है, वही अर्थापति में है, वही अनुपलब्धि में है, वही शब्द कह रहे हैं हमारे आचार्य के, तो सारे के सारे हमारे प्रमाण तो इसके अंदर में आ जाते हैं। मैं तो मना ही नहीं कर रहा, आपने प्रत्यक्ष में भी दिखा दिया, दवाई दी है कम हो गया। सो मैं कहीं पर भी मना नहीं कर रहा कि सारे के सारे आयुर्वेदिक और वैदिक प्रणाम जो हमारे प्रमाण होते हैं इसमें प्रूफ होते हैं।
लेकिन अगर इसको हमें मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ना है, देखिए अगर आपको आयुर्वेद के डॉक्टरों को लिखना है एज ए सपोर्टिव थेरेपी, आपको अप्रूवल मिल गया है, लेकिन अगर आप इसको मेन लाइन ले जाना चाहते हो पूरे वर्ल्ड में, मेन लाइन, फर्क है दोनों में। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि ये आप दूसरे ट्रीटमेंट के साथ में ऐड ऑन कर सकते हो, विच इज गुड, विच इज ऑल्सो गुड, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक फिलॉसफी है मॉडर्न मेडिसिन में, कोई ऐसी चीज जो नुकसान ना करे, शायद फायदा कर दे, तो उसको ले लो, तो उसको हम सपोर्टिव बोलते हैं। लेकिन इसको मेन लाइन रिसर्च में लाके, क्योंकि हम सिर्फ इसमें कोरोना की तो बात ही नहीं कर रहे, मैं तो इसमें कोरोना देख ही नहीं रहा, क्योंकि जो आयुर्वेद की दवाइयों के जो प्रिंसिपल जो आपने दिखाए हैं उसमें कोरोना के अलावा सब वायरस में ये काम करनी चाहिए, एंटी वायरल इफेक्ट इसका आना चाहिए उसके साथ में जो है। सो कोरोना का अगर म्यूटेशन भी आ जाए तो उसमें काम करना चाहिए, अगर ये कंसेप्चुअली जो आपने रिपोर्ट दिखाई है वो सही है, तो उस सिचुएशन के अंदर में डेफिनेटली कोई ना कोई, अगर ये दो नहीं आते तो डिफेंस वालों को साथ में लीजिए, किसी ना किसी को साथ में लेके जिनकी एक लैब में क्रॉस चेक हो सके। जो आप कर रहे हैं वो एक जगह पे दो लैब में सेम रिजल्ट्स को रेप्लिकेट कर दीजिए, यू विल क्रिएट ए हिस्ट्री, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके लिए बहुत अच्छा लगा। मैं इसमें 2-3 बात, ये सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में भी हो, तो जैसे आपने कहा कि ये आयुर्वेद वालों के तो लिए तो ठीक है, एलोपैथिक वालों के लिए सोचना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, हम लोगों ने टॉक्सिकोलॉजी तो पूरी करी है, खा के तो कोई मरेगा नहीं। जब एलोपैथिक वाले कभी तो कैंसर की दवाई, कभी एड्स की दवाई, कभी एपिलेप्सी की दवाई, जो उठा के कोरोना में खिला रहे हैं, और जो पीछे जो दवाई दी गई थी उसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस और रिसर्च नहीं है। रेमडेसिविर, हाँ, जो भी मेडिसिन है डॉक्टर अनुराग जी बताएंगे, उसका कोई रिजल्ट था नहीं। उन्होंने तो करोड़ों अरबों रुपया के पता नहीं कितने लोगों को खिला दिया, कितने लोगों को साइड इफेक्ट हो गए, कितने लोग मर गए। पर ये एक हम अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय खिला करके, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसका कोई रिएक्शन नहीं, पूरी जीएमपी लैब के अंदर, और जो आपने निवेदन किया कि सारे काम हमने इन हाउस नहीं किया है, मैं क्षमापूर्वक कहना चाहूँगा। हम लोगों ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर के काम किया, और हम लोगों ने जो पूरी जेब्राफिश के ऊपर काम किया है वो बाहर से काम किया, टॉक्सिकोलॉजी बाहर से काम किया है, और जो सूडो वायरस के ऊपर भी हम लोगों ने जर्मनी के साथ मिलकर के काम किया है। बहुत सारी जगह पर ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल भी हम लोगों ने स्वयं नहीं किया, वो निम्स जयपुर में डॉक्टर तोमर जी के नेतृत्व में हुआ है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल जो क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर हमारा फाइनल स्टेज पे चल रहा है, ऑलरेडी हम लोग उसको कर रहे हैं। उसको मैं इतना ही बताना चाहूँगा, उसके रिजल्ट्स भी बहुत उत्साहवर्धक हैं। अभी परिणाम आएगा तो हम देश के लोगों को बताएंगे। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं निवेदन तो यही करूंगा कि यह इसको सपोर्टिव मेजर के रूप में ही ले सही, क्योंकि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। मैं उसकी बिल्कुल, हम भी उसका समर्थन करते हैं। श्रीदेव स्वामी जी ने पहले दिन से उसके लिए सकारात्मक बात रखी है, परंतु वह कोरोना होने से पहले ही बचाता है, क्योंकि जो वैक्सीन है वो प्रिवेंशन है, ये कोरोनिल है वो प्रिवेंशन में भी मदद करेगा, इम्यूनिटी में भी मदद करेगा। कोरोना होने के बाद में जब तक कोई ऐसी औषधि जैसे आप चाह रहे हैं ना हो, तब तक निर्भय, बेधड़क और डंके के साथ हर कोई सेवन कर सकता है। भगवान करेगा 100% आप बचेंगे। 1%, आधे प्रतिशत यदि उसमें और गुंजाइश है तो काम निरंतर जारी है। ये यात्रा की समाप्ति नहीं है, ये यात्रा का प्रारंभ है। अब तक जो काम किया है वो तथ्य प्रमाण के साथ में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में दुनिया की एकलौती, चाहे वो हर्बल मेडिसिन ठीक है, हम उसको आयुर्वेदिक सिस्टम के रूप में जाने, क्योंकि शरीर में जो काम करता है वो कोई पैथी काम नहीं करता है, ना वहाँ एलोपैथी काम करती है, ना वहाँ आयुर्वेदिक काम करता है, वहाँ बायोकेमिस्ट्री काम करती है। उस मेडिसिन का जो कंपाउंड है, उसका जो प्रभाव है वह काम करता है। इसीलिए एक औषधि और उसके प्रभाव के रूप में इसका जरूर, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे जो प्रबुद्ध एक सीनियर हमारे अग्रज, आप चिकित्सक हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं कि आज आपने एक ओपन, खुले मन से, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि खुले मन से सब एक जगह पर आएं, हम चर्चा करें। प्राचीन काल में भी, चरक के ज़माने में भी ऋषि लोग बैठ करके चर्चा करते थे। आज भी संवाद होनी चाहिए, विवाद नहीं, संवाद से समाधान मिलता है। पर उनका क्या कहना, जिन्होंने पहले से ही जो आग्रह पाल करके बैठे हुए हैं, तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। और आपने आज हमको बुला करके आपने सुना। आचार्य जी, मैं सिर्फ एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब। कि इस वक्त में वैक्सीन लग रहे हैं जी, सो अगर आप लोग 100 पेशेंट्स ले लीजिए जी, जिनको वैक्सीन लगा है,
और वैक्सीन के साथ में आप अपनी दवाई दीजिए जी। और 100 लोगों को वैक्सीन लगाइए और अपनी दवाई मत दीजिए और देखिए एंटीबॉडी टाइटर पहले किसका आ रहा है और कितना बढ़ रहा है। एंटीबॉडी टेस्ट इजीली अवेलेबल है, कॉस्टली भी नहीं है, आपके यहाँ हो सकते हैं। सो अगर हम S1 S2 एंटीबॉडीज ये दिखा दें कि ये वैक्सीन को इम्यूनिटी बूस्टर है, वैक्सीन बूस्टर है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल हो जाएगी अगर हम ये दिखा सकते हैं कि ये वैक्सीन बूस्टर है। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में कई सारी कंपनियां वैक्सीन बूस्टर पे काम कर रही हैं। सो अगर हम ये दिखा सकते हैं कि इससे हमने 100 लोगों को वैक्सीन दिया, आपके लिए सरकार से बात करके 5 मिनट का खेल है। आपने सरकारी अस्पताल से जहाँ पे 100 लोगों को दिया, 100 लोगों को नहीं दिया, फर्स्ट डे से आप उनको ये दीजिए और जिनको दिया है उनको 14 दिन में, क्योंकि नॉर्मली सेकेंड वैक्सीन के बाद में एंटीबॉडीज बननी चाहिए, आप फर्स्ट वैक्सीन के 14 दिन के बाद में 100 लोगों के एंटीबॉडीज टेस्ट करा लीजिए। और मेरा ये मानना है कि एंटीबॉडीज आनी चाहिए। मेरे को जो समझता है उसके हिसाब से जो आपने बायोकेमिस्ट्री और जो बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पे दिखाया है उसके हिसाब से ये मेरी बॉडी के अंदर में रिएक्शंस को करते हुए एंटीबॉडीज जल्दी बनानी चाहिए। इसको आप करके देख सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम, बिकॉज जब से हम आयुर्वेद के बारे में बात करते आए हैं, हम हमेशा आयुर्वेद से एक ही बात करते आए हैं कि आप सिर्फ मीमांसा की बात क्यों करते हो, जो लिखा है वही सही है। अब आप उसको, अगर आपको मीमांसा से बाहर जाना है तो वैशासिक और मीमांसा से न्याय पे आइए, लॉजिक लीजिए और वैशासिक से प्रूव करिए। आज के अंदर में जब कॉन्शियसनेस को भी लो क्वांटम फिजिक्स पे ले जा रहे हैं तो हम लोग, और मुझे खुशी है कि आप लोग मिलके उस सोच को आपने आयुर्वेद की बदला है कि हम एक ऐसी लैब क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड, सिंगल ब्लाइंड, जो भी जितने भी ब्लाइंड होते हैं उस तारीख की स्टडीज करने को तैयार हैं। पायलट स्टडी है, आप लोग और इसको आगे बढ़ाइए। मेरे को लगता है कि जो काम आपने किया है वो साइंटिफिक है और सराहनीय है। सो मेरा आपको प्रणाम आचार्य जी, और मेरा अनुराग को भी प्रणाम। आचार्य, आप काफी इंटेलिजेंट हो और काफी डीप नॉलेज से आपने जो रिसर्च कर रहे हो, और आचार्य जी का तो आयुर्वेद की लैंग्वेज में कोई हम डाउट ही नहीं कर सकते। सो आप दोनों को मेरा प्रणाम, और चाहूंगा कि आपकी रिसर्च चलती रहे और आप इसको साइंटिफिक फोरम्स में हर जगह पे प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। लेट इट बी बिल्ट अप। अगर आप इसको साइंटिफिक फोरम्स के अंदर में, हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है कि कोई क्लेम से पहले साइंटिफिक फोरम्स में आप इसको प्रेजेंट करो। अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटीज का इसमें अप्रूवल चाहते हो तो आपको हर साइंटिफिक कम्युनिटीज के अंदर में आपको इसको प्रेजेंटेशन देके डिबेट करनी होगी उसके साथ में। बट कम से कम एक ऐसा जो स्टेप आप लोगों ने लिया है कि साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ एन आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, मेरी तरफ से बहुत सराह दिया है। आप सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। That's all for today. Sorry for extending this program, क्योंकि लगा था कि इसके ऊपर में बातचीत करनी बहुत जरूरी है। हम आपसे विदा लेते हैं। We'll be back tomorrow 7 PM. Keep watching MEDtalks with Dr. KK. नमस्कार। नमस्कार।